Hello everyone, I welcome you back in the class of SPNCC. Today again we are going to continue with our subject SPNCC, in which we will be starting with chapter number first again. Alright, this is going to be our third lecture. In the previous lectures we have seen how the shares are to be issued and what are the procedures of share allotment. In the previous lecture also, I have given you brief about the legal restrictions and provisions on share allotment. When the company allots the share, जब वो company allot करती है share, application receive हुई, उसके बाद shares को allot करना पड़ता है, right? And those allotments are to be given by the company by following some legal restrictions. Alright, so one by one we are going to start with these restrictions. So what is written here? Certain restrictions are imposed on allotment of shares under Companies Act 2013 and guidelines issued by SEBI. Some of are as under. Okay, who first of all issues such restrictions? So few restrictions are imposed by Companies Act 2013, plus there are certain guidelines which are being issued by SEBI. तो SEBI और Companies Act 2013 दोनों मिलके restrictions देते हैं, right? So which is the first restriction while doing share allotment? जब share allotment करते हैं तो क्या restrictions follow होते हैं? So the first one says a company cannot issue shares at a discount in a public. पब्लिक में वो कभी भी शेयर डिस्काउंट रेट पे इशू हो सकता नहीं है, राइट? इफ़ द वैल्यू ऑफ द शेयर, सपोज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज़ पर शेयर, कंपनी कैन नॉट इशू इट ऑन एट 9 और एट 7 और एट 5 और एनीथिंग, इट शुड नॉट गो बिलो द फेस वैल्यू. 10 रुपीज़ का शेयर है तो वो एग्जैक्ट 10 में या उससे ज़्यादा इशू हो सकता है, वो डिस्काउंट रेट पे इशू हो सकता नहीं है. Second one, it is a minimum of 10% of share issued will be reserved for retail investors in public. Minimum 10% of share issued. This is very important, everybody. So make sure that you note it down, that these 10% of shares which the total amount of share का जो अमाउंट होता है टोटल, उसका मिनिमम 10%. सपोज कंपनी 100 करोड़ की शेयर इशू कर रही है तो 100 करोड़ का 10% क्या होगा? 10 करोड़. तो 10 करोड़ तो मिनिमम वो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो 2 लाख से जिनका शेयर वैल्यू ज़्यादा नहीं ले सकते. रिटेल इन्वेस्टर की लिमिट 2 लाख होती है. तो एनी इन्वेस्टर who is investing below 2 lakhs is retail investor. जैसे these are the small investor like you and like me, right? अपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. सो जो कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है दैट फॉलोज इन सच रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए मिनिमम 10% तो कंपनी को रखना ही पड़ेगा. ऑलराइट, नंबर 3, all types of investors have to make application through ASBA process only. ये सारे के सारे टाइप की जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन होगी, राइट, वो सब कुछ आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट प्रोसेस से ही होगी. तो जहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका अकाउंट, आपकी बैंक आसबा को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी वर्किंग. Alright, then entire process of public. Number 4th point is the entire process of public issue, including opening of subscription, accepting applications, allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange is to be completed within 10 days. Thereafter, trading of shares allotted will be commenced on recognized stock exchange. So listen here, in the previous page only they have given 15 days, so we'll make a correction here and write 15 days instead of 10 days. What is written? The entire process of public issue, including opening of subscription, then after accepting the applications, allotment of shares and listing of share on recognized stock exchange. तो जहाँ से वो शुरू हो रहा है, right, that
बैंक ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का जब से खुलना और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना, दिस होल प्रोसीजर इज टू बी डन इन 15 days, not 10 days but 15 days. Clear? This way it should be done. Number 5 is Demat account is compulsory for applying for shares, and the shares will be credited into Demat account of the applicant only. Demat account is compulsory if you want to trade in share market. There should be a Demat account of yours, otherwise you won't be able to invest in shares. Okay, and shares will be credited in your Demat account, nowhere else. So make sure that जैसे अपने को बैंक में अगर पैसे जमा करने हैं ना, तो we need bank account. सेम वे अगर हमको शेयर्स जमा करने ना अपने अकाउंट में, तो अपने को डीमेट अकाउंट चाहिए होगा. दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इट इज okay, at least 90% of shares issued which are not underwritten must be subscribed. The company cannot issue shares if the application received less than 90% of shares, that is of minimum subscribed issued. Okay, so at least 90% of the shares issued, जितने शेयर इशू हुए हैं, राइट, सपोज 100 करोड़ के शेयर इशू हुए हैं, तो उसका 90% विच आर नॉट अंडर रिटन, ओके, अंडर राइटर्स ने कोई गारंटी नहीं ली है, मस्ट बी सब्सक्राइब्ड. ओके, तो जितना आपने पब्लिक को इशू किया है और उसमें अंडर राइटिंग सपोज नहीं करवाया, आपने किसी को अपॉइंट नहीं किया, अंडर राइटिंग मतलब किसी अपने लीड मैनेजर्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अपॉइंट करते हैं कि सपोज़ कि कोई और शेयर्स नहीं ले रहा हमारे, तो आप हमारे शेयर्स ले लोगे, तो वो अंडर राइटर गारंटी देता है कि अगर कोई शेयर नहीं लेता तो मैं आपके शेयर्स ले लूँगा. ओके, तो वो अंडर राइटिंग आपका नहीं करा हुआ है और आपको तो भी एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर इशूड, ओके, कि जैसे 90% उसके शेयर्स तो आपके सब्सक्रिप्शन में आने ही चाहिए अगर आपने अंडर राइटिंग नहीं करवाया. अगर अंडर राइटिंग करवाया है तो ऑब्वियसली बात है वो लोग खरीद ही लेने वाले. The company cannot issue shares if the application received are less than 90% of shares इशूड. ओके, अगर 90% जितना 100 करोड़ में से 90 करोड़ की नहीं आई तो आप शेयर इशू कर सकते नहीं हो. बट अगर आपने अंडर राइटिंग करवा दिया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने गारंटी ले ली है कि हाँ कि आपके अगर शेयर्स नहीं बिके तो मैं ले लूँगा, या कोई इंस्टीट्यूट आपका ख़रीद लेगा आपके शेयर्स, तो फिर कोई क्वेश्चन उठता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके शेयर्स सब्सक्राइब हो गए, चाहे वो अंडर राइटर ले रहा है या कोई पब्लिक ले रही है. ओके, moving on to 7th point, company is required to issue shares through book building process if certain criteria laid down by SEBI are fulfilled by company. Now when there's a question of book building process, what is book building process? So when the price of company's shares are not fixed, suppose मैं शेयर इशू कर रही हूँ, तो अगर मैं 10 रुपीज़ का शेयर है, ओके, वो इशू कर रही हूँ, तो प्राइस फिक्स रखी है मैंने कि 10 रुपीज़ का शेयर है, बट मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ प्राइस के बारे में शेयर के, तो आई हैव डिसाइडेड दैट माई शेयर्स प्राइस वुड बी बिटवीन 10 to 15 रुपीज़. ओके, कि 10 से 15 रुपये की मेरी शेयर की प्राइस होगी. सो दैट इज़ बुक बिल्डिंग प्रोसेस. तो उसमें क्या होता है कि आपको बोली लगानी है कि कोई शेयर्स 12 में बोले खरीदेगा, कोई 13 में खरीदेगा, तो वो फिर लास्ट फाइनल प्राइस फिर डिसाइड होता है, और जिसने वो प्राइस में इशू अप्लाई करा है उसको वो शेयर्स मिल जाएंगे. सो दैट इज़ बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ओके, पर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस आप तभी कर सकते हो इफ़ सर्टेन क्राइटेरिया ले डाउन बाय सेबी आर फुलफिल्ड बाय योर कंपनी. अगर वो कंपनी ने सेबी के वो क्राइटेरिया फुलफिल करे हैं, देन एंड देन ओनली दे कैन इशू सच शेयर्स इन अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस. नंबर 8 इज इफ शेयर्स आर इशूड एट फिक्स्ड प्राइस. यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस नहीं था, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस है, राइट. Decided in advance, the company must get prospectus sanctioned by SEBI. If shares are through book building process, the company must
get the red herring prospectus sanctioned by SEBI. So listen this point very carefully, that if shares are issued at fixed price, अगर fixed price है तो आपका तो the company must get the prospectus sanctioned by SEBI. SEBI से उसका prospectus sanction करवाना पड़ेगा, मतलब उसको approve करवाना पड़ेगा. ठीक है, कब? जब फिक्स प्राइस पे 10 रुपये का शेयर 10 रुपये या 15 रुपये का शेयर है या 20 रुपये का शेयर है, पर शेयर की प्राइस फिक्स है, तो उस केस में कंपनी को सिर्फ अपना प्रोस्पेक्टस सेबी से एक बार सेंशन करवा देना है, परमिशन ले लेनी है. एंड इफ शेयर्स आर इशूड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस कब होती है? जब शेयर की प्राइस फिक्स नहीं होती है, कि 10 to 15 के बीच में है प्राइस, मतलब एक फिक्स प्राइस नहीं है, ये इतना 10 to 15 जितना भी डिफरेंस वो लोग रखते नहीं है. इट इज़ जस्ट ऑफ वेरी फ्यू अमाउंट दैट दे कीप, ओके, वेरी लिटिल अमाउंट दैट दे कीप. सो बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है तो वो कब होती है? जब शेयर की प्राइस फिक्स नहीं होती है. Okay, so if shares are issued through book building process, the company must get the red herring prospectus sanctioned by SEBI. समझ लेना इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है. They have used the word red herring prospectus sanctioned by SEBI. Okay, अगर फिक्स्ड प्राइस है तो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है. और अगर प्राइस फिक्स नहीं होता, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, तो उसके सामने क्या आता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आ जाता है. तो ये एक MCQ फॉर्म में भी तुमसे पूछ सकते हैं, दैट इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू होता है, तो तुमको बोलना है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होता है. ओके, दोनों में सेंशन तो तुमको सेबी से लेनी है, लेकिन प्रोसेस क्या होगी कि उसमें फिक्स प्राइस में प्रोस्पेक्टस आएगा, बुक बिल्डिंग में कि जब प्राइस शेयर की फिक्स नहीं है तो तब आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 9 इज अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी मस्ट बी कॉल्ड अप एज शेयर एप्लीकेशन मनी. हालांकि ये जो पॉइंट है ना, ये अभी के टाइम पे इतना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है कि एप्लीकेशन के साथ ही पूरी अमाउंट मंगवा देते हैं. नहीं तो पहले कैसे होता था कि 10 रुपये का शेयर है तो पहले 2 रुपये मंगाएंगे पर शेयर, फिर 5 रुपये मंगवाएंगे, फिर 3 रुपये मंगवाएंगे, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स को मंगवाते थे. बट अभी तो एक साथ ही अमाउंट आ जाता है. सो दिस इज समथिंग ओल्ड प्रोविजन. व्हाट इज रिटन? अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी. या तो शेयर की फेस वैल्यू, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो उसका 5% मतलब 0.5 राइट पैसा, मतलब 50 पैसा, सॉरी. सो दैट अमाउंट ओनली. अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, सपोज 100 का एग्जाम्पल लेते हैं विच विल बी ईजी, तो 100 रुपीज़ के 5% इज़ 5 रुपीज़. तो मिनिमम आपको 5 रुपये पर शेयर तो मंगवाने ही है, या तो फिर जो आपको सेबी ने अमाउंट बोली हो वो. ओके, कि सपोज सेबी ने 10 रुपीज़ मिनिमम बोली है तो आपको 10 रुपीज़ करना है, 8 बोली है तो 8. अगर सेबी ने कुछ नहीं बोला है तो विच मीन्स 5%, दैट इज़ 5 रुपीज़ तो आपको मंगवाने ही पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ. मिनिमम, मैक्सिमम आप ज़्यादा मंगवा सकते हो. 5% इज़ 5 रुपीज़, देन यू कैन कॉल अप 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ व्हाट्स एवर यू विश टू, बट मिनिमम 5 रुपये तो 5% तो तुमको मंगवानी रहेगी. Number 10, it is a company must enter into agreement with recognized stock exchange for listing of the shares. ये बहुत पहले कर लेना पड़ेगा कंपनी को, कि पहले ही अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो आपको उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ओके, सो वी मस्ट रजिस्टर आर, they must have to file an agreement. ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उन दोनों में से किसी भी एक के साथ तो मिनिमम उनको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे शेयर है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे इशू करने वाले हैं. Alright, so this procedure is to be done before they issue the shares, right? Then only they'll get the permission, because even this takes a lot of time. Number 11 is the company must enter into agreement with respective depository company to credit share
अलॉटेड। देखो अभी जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मेंबर्स की और सबकी डिटेल्स कंपनी नहीं रख पाती है, इसीलिए वो डिपॉजिटरीज को अपॉइंट करती है। ओके, और वो डिपॉजिटरीज क्या करती है, वो कंपनी के मेंबर्स की रिकॉर्ड रखती है कि ये कंपनी के ये लोग मेंबर्स हैं। ओके, सो ऑल सच बी रिकॉर्ड्स आर टू बी डन बाय दिस डिपॉजिटरी कंपनी। ओके, डिपॉजिटरी होती है ये कंपनीज की, वो अपॉइंट हुई जाती है। तो बिफोर दे इशू द शेयर्स, इवन बिफोर दे अलॉट द शेयर्स, आई मीन दे नीड टू बी इन द अग्रीमेंट with such respective depository company to credit such shares। क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे अगर आप अपने रिलायंस के शेयर्स ले रहे हो तो आपको रिलायंस कंपनी से मैसेजेस नहीं आते हैं, आपको कौन भेजता है, डिपॉजिटरी, रिलायंस की जो डिपॉजिटरी कंपनी होती है वो आपको मैसेज भेजती है कि आपके अकाउंट में अभी इतने रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि काम है क्योंकि ये सारा काम है डिपॉजिटरीज का, ना कि वो जो कंपनी जिससे आप शेयर खरीद रहे हो। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इट इज नंबर 11। okay, so number 12, the minimum subscription and its effects must be disclosed in the prospectus। the minimum subscription and its effect, कि minimum subscription कितना होना चाहिए और उसकी इफ़ेक्ट, अगर आ गया तो क्या, नहीं आया तो क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो वो भी सारी चीज़ें कहाँ डिस्क्लोज होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस में। अंडरस्टूड। अगर ऐसा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो कंपनी शेयर्स वापस कर देगी, रिफंड कर देगी, तो वो भी लिख दो। अगर आपने अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर दिया है कि हाँ अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी आता है तो अंडर राइटर्स हैं हमारे जो हमसे शेयर खरीद लेंगे। ओके, तो वो भी आपको प्रोस्पेक्टस में डिसाइड कर देना है, उसको डिस्क्राइब कर देना है। Number 13 is the company must have minimum net worth as prescribed by SEBI for making a public issue। देखो कोई भी एरा गेरा आके सीधा बोलेगा कि चलो मेरे को तो इशू करने हैं अपने शेयर्स मार्केट में, तो सेबी बोलेगी नहीं बेटा रुक जा, हम तुमको ऐसे ही तो नहीं आने देंगे मार्केट में। क्यों पैसे बोरो कौन कर सकता है, जिसका कुछ वेल्थ हो, जिसकी कोई अपना, उसके पास खुद का पैसा होएगा थोड़ा बहुत, अपनी कुछ स्टेबिलिटी होगी, तो वो दूसरे से मांग सकता है। अभी वो खुद के पास ही, उसके पास कुछ भी नहीं है और लोगों से वो करोड़ों रुपए ले रहा है, तो कोई उस पर भरोसा करेगा, नो नेवर। अपने भी अगर किसी को पैसे उधार भी देते ना तो हम देखते हैं कि वो अपने को वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, थोड़ी बहुत जांच करते हैं उसकी। तो ये तो करोड़ों की बात है और सब सारे इतने सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे लोगों के पैसे जुड़े हैं, तो इसीलिए सेबी उसको बोलती है कि भाई पहले तू मुझे तेरी नेटवर्थ दिखा कि तेरे पास कितना पैसा है, वो मुझे जानना है। तो अपनी कंपनी अपनी नेटवर्थ दिखाती है, तो वो एज पर सेबी की गाइडलाइन होती है, और अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो ही वो शेयर्स पब्लिकली इशू कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट इशू द शेयर्स। Okay, number 14 and the last one, the promoters have also purchased shares in if the promoters have also purchased share in the public issue, they cannot sell such shares for a certain period of time as prescribed by SEBI। this period is called lock-in period। ये पॉइंट को थोड़ा मार्क कर देना, राइट, दैट दिस पॉइंट इज वेरी important। all right, put a star on this point because this is very important actually। so lock-in period, okay, the word lock-in period here is important, that if the promoters have purchased share, promoters मैंने तुमको बताया था, if you remember I'll tell you again। promoters कौन होते हैं, कंपनी देखो अभी बनी नहीं होती है उसके पहले से ही शेयर्स की प्रोसीजर शायद स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंपनी रजिस्टर नहीं भी होती है उसके पहले से भी जो लोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो लोग ने कंपनी फॉर्म करी है, राइट, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, जिन्होंने कंपनी बनाने का आइडिया सोचा है, वो होते हैं प्रमोटर्स। ओके, जो कंपनी के रजिस्टर होने के पहले से ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने कंपनी बनाई है एक्चुअल सेंस में। ओके, तो वो थे प्रमोटर्स। अभी प्रमोटर्स कई बार चीट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले वो खुद ले लेते हैं
शेयर्स, ओके। और जैसे ही उसके भाव बढ़ते हैं ना, तो खुद के कंपनी के शेयर्स वो लोग खुद बेच लेते हैं और उसका भाव फिर क्या हो जाता है, गिर जाता है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, द नॉर्मल पीपल सफ़र, क्योंकि भाव अगर वो सेल करना चालू कर देंगे, वो कंपनी की डिमांड कम हो जाएगी और तुरंत कंपनी के शेयर्स के भाव गिर जाएंगे। तो सारे लोकल लाइट्स जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग सफ़र करेंगे। इसीलिए सेबी ने उनके लिए लॉक इन पीरियड रख दिया है कि इतने टाइम तक तो आप अपने शेयर्स बेच सकते नहीं हो, वरना तो ये तो सबसे पैसे ले लिए फिर अपने शेयर्स बेच के चले गए। सो फ्रॉड हो सकते हैं, और ऐसे फ्रॉड के रियल केसेस हुए भी हैं। एंड दैट्स वाई ओनली कंपनी हैज़ मेड सच काइंड ऑफ प्रोविजन दैट दीज आर द रिस्ट्रिक्शन दैट आर टू बी केप्ट while you make such allotments. Okay, these are very basic restriction that they have given, बट एक्चुअल सेंस में जब कंपनी के शेयर अलॉट होते हैं, कंपनी के शेयर इशू होते हैं, तो बहुत सारी प्रोसीजर होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट टेक्स ईयर्स टू इशू द शेयर्स, ओके। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है, साल लग जाते हैं कंपनी को एक IPO लाने के लिए। ऑलराइट, सो दीज आर द 14 legal restrictions and provisions on share allotment. Now see, तुम्हारे पास ये 14 पॉइंट्स हैं, तुमको एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं इन 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, एंड यू कैन राइट 8 अमंग दीज 14, बट समझ सही से लो और उसके जो शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दो, क्योंकि ये सारे ना 1 मार्क में बहुत आ सकते हैं। तुमको 1 लाइन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं लॉक इन पीरियड क्या होता है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो 90% होता है, ओके। तो वो मिनिमम कितने परसेंटेज शेयर्स तुमको रिटेल इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे, तो 10% देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम नोट डाउन कर लो, ओके। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करनी है वहाँ अंडरलाइन कर दो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज, नो, यू डोंट नीड टू गो ईच एंड चेक ईच एंड एवरीथिंग, राइट? यू कैन जस्ट have a glance on your underlined words, and you'll just can have a quick recap. So make sure that you revise all these 14 points, okay, because these 14 points are going to be asked in your exam, and you have to write 8, okay, because 4 marks में आएगा तो 8 are enough. तो 8 तो बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए, अगर एक आध एक्स्ट्रा लिख देना है तो that will also work. So we saw the legal restrictions and provisions of share allotment. Now we will see irregular and illegal allotment of the shares, okay, irregular and illegal allotment of shares. Now these two words looks very resembling, दोनों एक जैसे लगते हैं, but actually they are not, okay. They both these both words have different meanings, okay, that we will come to know. एक एक टॉपिक दोनों पहले हम लोग रीड करेंगे, will understand, और उसके बाद दोनों का कंपेयर करेंगे कि what and how irregular और illegal allotment जो होता है शेयर्स का वो कैसे अलग होता है, राइट? सो फर्स्ट विल बी सीइंग द मीनिंग of irregular share allotment, and afterwards we'll see in which circumstances it is considered as irregular. So first we'll read meaning. Irregular allotment in share is when the shares are allotted without fulfilling statutory provisions and restrictions. What is written? That irregular allotment of share is when, कब कहलाएगा वो irregular है, जब shares are allotted without fulfilling the statutory provisions and restriction. Now which are those statutory provisions and restrictions? These statutory provisions and restrictions are something that you have learnt here, okay. ये जो सारे तुमने लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ शेयर्स, अगर ये फुलफिल नहीं होगा, सपोज ये फुलफिल नहीं होगा, तो इट इज़ कॉल्ड द इरेग्युलर अलॉटमेंट. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन, a share allotment is known as irregular share allotment under the following circumstances. अभी अगर ये following circumstances हो रहे हैं तो that will be considered as irregular share allotment, okay. तो पहली कंडीशन क्या है? शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था? 90%,
ओके। तो अगर 90% शेयर उनको एप्लीकेशन नहीं आई है, राइट, जितना उन्होंने इशू किया उसका 90% शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आई और उन्होंने अंडर राइटिंग भी नहीं करवाया है, राइट, तो उसको बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो क्लॉज है वो फुलफिल नहीं हुई है और फिर भी कंपनी ने अगर शेयर अलॉट कर दिए तो इन सच केस it will be considered as irregular share allotment. Okay, next one, it is a copy of prospectus is not filed with registrar of company and SEBI. अगर आपने ROC में prospectus की कॉपी सबमिट नहीं कराई, सेबी या ROC दोनों में से एक में भी आपने अगर सबमिट नहीं कराई तो यू वुड बी कंसिडर्ड, योर अलॉटमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज irregular allotment of the shares. Number 3 is minimum 5% of the face value of shares or the amount decided by SEBI is not received with application. Okay, जब application करवा रहे हैं तो 5% as we have discussed that all just only कि ये प्रोविजंस और जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें दिया गया था कि 5% ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है उसका 5% या जो अमाउंट से भी तुमको बताती है उतना मिनिमम अगर हमने रिसीव नहीं किया एप्लीकेशन के टाइम, ओके, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इरेग्युलर शेयर allotment. Moving on to the next page, page number 89, that says number 4, that says escrow bank account is not opened with scheduled bank. ओके, अगर आपने एस्क्रो बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, एस्क्रो बैंक अकाउंट किस लिए था, ताकि हम जो शेयर एप्लीकेशंस रिसीव करें वो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हो और वो जो अमाउंट हो हमारे पास एक अलग से अकाउंट में हो, एंड दिस विल बी द करंट अकाउंट, ओके, विच विल बी ओपन इन स्केड्यूल्ड बैंक. अगर आपने वो अकाउंट खुलवाया ही नहीं है तो विच मीन्स आपने शेयर इशू करने का फर्स्ट स्टेप ही नहीं फॉलो किया है, राइट. हमने जो शेयर इशू करने के स्टेप्स देखे थे उसका फर्स्ट स्टेप ही यही था कि आपको पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना है. तो अगर आपने वो अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो दैट एस्क्रो अकाउंट अगर आपका नहीं खुला हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज irregular allotment of the shares. Number 5 is listing agreement is not made with recognized stock एक्सचेंज. अगर आपने कोई अग्रीमेंट ही नहीं किया किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो फिर आपका जो अलॉटमेंट होगा वो इरेग्युलर कहलाएगा क्योंकि आपने प्रोविज़न और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करे नहीं है. तो अग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपके शेयर्स लिस्ट ही नहीं होंगे तो उसका ट्रेडिंग कैसे होगा, ट्रेडिंग नहीं होगा तो फिर ये बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स कैसे होगा, तो व्हाई वुड पीपल बाय योर शेयर्स, ऑलराइट. Next is agreement is not made with depository, as we have seen in the provisions that agreement with depository के साथ होना ही चाहिए टू क्रेडिट द शेयर्स विच आर बीइंग अलॉटेड. कि उनके साथ क्यों होता है कि हम लोग जो शेयर्स उनको अलॉट करते हैं एक जो मेंबर्स होते हैं तो उसको उसका पूरा एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, उसका पूरा डिटेलिंग होना चाहिए, उसकी पूरी रिकॉर्ड रखनी पड़ती है. तो वो रिकॉर्ड कंपनी नहीं रखती है पर वो डिपॉजिटरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो डिपॉजिटरीज वो मेंबर्स का पूरा नोट डाउन करके रखती है. उनको मीटिंग के सारे एजेंडास मिनट सब कुछ वो ही प्रोवाइड करती है. तो उसके साथ आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा और अगर आप अग्रीमेंट वो नहीं कर रहे हो तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो इरेग्युलर कहलाएगा. ठीक है. नंबर 7 इज शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. देखो कभी भी व्हेनेवर इट इज़ द मैटर ऑफ शेयर्स नो ROC और सेबी तो बीच में टांग अड़ाएगा ही और उनके जो भी प्रोविजंस है, जो भी उनकी गाइडलाइंस है, जो भी उनके रूल्स है, जो भी उनके रेगुलेशंस है, जो भी उनके सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशंस है, कोई छोटे से छोटी बात भी जो सेबी बोलती है या ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी बोलती है और कंपनीज एक्ट जो भी कुछ करने को बोलता है वो आपको कैसे भी करके करना ही रहेगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्क इट डाउन. ओके, तो वो आपको कैसे भी करके फॉलो करना ही रहेगा. ओके, अगर नहीं करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट.
then information given in prospectus is misleading or इनकरेक्ट. जो आपने प्रोस्पेक्टस में चीज़ें दी है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं लिखा है, आपने झूठ लिखा है, या तो मैनिपुलेट करे ऐसे तरीके से लिखा है, मिसलीड करेगा कि आप बोलना कुछ लिख कुछ और रहे हो और उसमें जो रीडर होगा उसके ऊपर कुछ अलग ही इम्पैक्ट आ रहा है. आपको पता है आप इंटेंशनली दिस थिंग्स इज बीइंग डन, ओके, मिसलीड कर रहा है या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपने इनकरेक्ट दी है, तो फिर दैट that allotment will be considered as irregular share allotment. Okay, so these are the circumstances where you will be these allotment will be considered as irregular. अगर ये आर्ट का प्रोविजंस है जो वायलेट करे हैं तो फिर आपका जो अलॉटमेंट होगा वो इरेग्युलर कहलाएगा. नाउ इन योर एग्जाम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी जनरली आस्क्ड इन 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में जनरली वो पूछा जाता है. सो मेक श्योर दैट यू नो राइट इट दैट 3 मार्क्स के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर 3 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स. 4 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स. 2 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स. तो ये 2, 3, 4 तीनों में एक्चुअली आ सकता है. सो यू कैन जस्ट हैव अ नोट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट इट इज़ इफेक्ट ऑफ इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट. अगर आपने अभी शेयर अलॉटमेंट कर दिए, ओके, ये इरेग्युलर शेयर अलॉट हुए आपके, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, राइट, दैट हाउ वुड इट अफेक्ट इट टू अस, राइट. सो इफेक्ट ऑफ irregular share allotment is when allotment of share is irregular, okay, applicant can get the allotment cancelled. applicant जो होगा, अगर आपको पता चला कि ये इरेग्युलर है तो आप वो अलॉटमेंट को कैंसिल करवा सकते हो एट इज ऑप्शन एंड कैन गेट द रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड ऑन शेयर. ओके, और आपको आपके शेयर्स का रिफंड मिल सकता है. Okay, when allotment of share is irregular, applicant can get the allotment cancelled. वो अपना allotment cancel करवा सकता है at his option. उसको करवाना है तो optional है, ये compulsory नहीं है कि करना ही है. Okay, and get the refund of the amount paid on the shares. तो आपको अपना amount भी repay हो सकता है. It is important to note that in case of irregular allotment, the applicant can get the allotment cancelled if any loss has been incurred by him due to this allotment. आपको रिफंड तब मिलेगा जब आपको लॉस हुआ है, आपको शेयर्स मिलने वाले थे, आपको नहीं मिले, दैट इज़ योर लॉस. ओके, या आपको कुछ वो अलॉटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट यू हैव इनकर्ड, ओके, तो तब आपको रिफंड मिलेगा. ओके, अगर आपको कोई उससे लेना देना ही नहीं, आपने अप्लाई ही नहीं किया वो अलॉटमेंट में, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट यू वांट रिफंड, नो, यू विल नॉट गेट इट. नो, तुमने तो अप्लाई ही नहीं किया. वो अगर जिसने अप्लाई किया है, जिसके पैसे गए हैं, जिसको शेयर्स मिल सकते थे, नहीं मिले बिकॉज ऑफ सच इरेग्युलरिटी, तो बात अलग है. पर आपका कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने वो कंपनी में अप्लाई ही नहीं करा और मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे को तो रिफंड चाहिए, तो किस बात का रिफंड चाहिए. सो इफ़ एनी लॉस हैज़ बीन इनकर्ड देन ओनली यू कैन गेट द अलॉटमेंट कैंसल्ड. ओके, एंड देन ओनली यू कैन गेट द रिफंड. ओके, दिस टाइम नाउ ये करने के लिए भी अभी आप 5-10 साल बाद आओ कि नहीं ये आपका अलॉटमेंट तो गलत था, तो फिर भी नहीं होगा. उसके लिए एक टाइम लिमिट है. ओके, द टाइम लिमिट फॉर द सेम इज़ एज अंडर. अब ये टाइम लिमिट की जो कंडीशंस है वो बराबर से उसको समझना, ध्यान देना, राइट, बिकॉज दीज टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. अभी आप आज अलॉटमेंट था और आज के 10 साल बाद मुझे याद आ रहा है ये तो अलॉटमेंट गलत था, तो फिर मेरे को रीपे नहीं करेगा कि बोलेगा अब कौन हो तुम. ठीक है. सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ टाइम लिमिट इज़ दैट application for cancellation of share allotment can be made within 2 months of the first statutory meeting. Now what is a statutory meeting? So as per section 165, okay, 165 section, okay, as per section 165 of Companies Act,
ओके, कि अगर every company, if you have share capital, okay, I'm telling you the meaning of statutory meeting. As per section 165 of Companies Act, it is said that any company which is being limited by shares, okay, जो company is limited by share है या लिमिटेड बाय गारंटी है एंड हैविंग शेयर कैपिटल, उसके पास शेयर कैपिटल है और लिमिटेड बाय गारंटी है, ऐसी जो भी कंपनीज है उनको पूरे लाइफ स्पैन में जब उनका कंपनी जब रजिस्टर होती है, जब कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं पहली बार, तो वो पहली बार एक शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है एंड दैट हैपन्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। पूरी कंपनी के लाइफ स्पैन में वो एक ही बार स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कंपनी टू शेयर होल्डर्स। उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके सामने कंपनी को इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसको कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताने के लिए, और जो उनके शेयर्स का अमाउंट है वो कहाँ यूटिलाइज होने वाला है उसका पूरा अच्छे से पावर पॉइंट दिखा के और सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करके उनको बताते हैं। और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग सिर्फ एक बार होती है पूरे कंपनी के लाइफ स्पैन में। ऑलराइट, तो वो कब होती है? वो भी इनिशियली होती है जब कंपनी के शेयर्स नए नए इशू होते हैं तब होती है, ताकि कंपनी और शेयर होल्डर एक दूसरे को अच्छे से जान पाएँ। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक अबाउट द इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट। ओके, कि ये जो आपको अप्लाई कर देना है, कि टाइम लिमिट जो आपको बता रहे हैं कि कितने टाइम में आपको शेयर अलॉटमेंट की जो अगर इरेग्युलर है तो आपको उसकी कंप्लेन करनी है, तो कितने टाइम में करोगे? एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट कैन बी मेड विद इन 2 months ऑफ द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो पहली एक ही बार होती है, एंड वो स्टैट्यूटरी मीटिंग के 2 महीनों में, सपोज टुडेज डेट, सपोज व्हाट्सएवर टुडेज डेट्स कंसिडर एज 1 May, राइट। तो 1 May को अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई है तो 2 महीने, तो मई का पूरा महीना, जून का महीना, तो जून अभी 30 जून के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते नहीं हो, आपका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। Okay, so within 2 months of statutory meeting you have to apply for cancellation of share allotment if you find that it is irregular. Number 2 is within 2 months of allotment of shares, अगर आज shares का allotment हुआ है, okay, if allotment was done after first statutory meeting, कि suppose कि statutory meeting हो चुकी है कंपनी की, ओके, ये कंपनी ने ऑलरेडी स्टैट्यूटरी मीटिंग रख दी है और उसके बाद शेयर अलॉट हुए हैं, ओके, तो तब क्या करोगे? तो तब तो शेयर्स, चलो अलॉटमेंट आज हुआ है और स्टैट्यूटरी मीटिंग 3 महीने पहले हो चुकी है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यू हैव अनदर ऑप्शन कि विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सपोज कि स्टैट्यूटरी मीटिंग 1 May को हुई और अलॉटमेंट ऑफ शेयर 1 जून को हुआ, तो आप कब तक कर सकते हो? जून का पूरा महीना कर सकते हो, जुलाई का भी महीना कर सकते हो, तो अप टिल 31 जुलाई यू कैन अप्लाई। ओके, तो विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिस दिन अलॉट हुए हैं आपको शेयर्स उसके 2 महीनों में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। Third thing is that a director is personally responsible to compensate the loss of the shares of the company or shareholder if he willfully violates the provision of statutory allotment or allows other to violate them. The process of the recovery of such loss must be initiated within 2 years of allotment of the shares. See, this point is something very important. Make it make a circle or star on it, that what is written, a director is personally responsible. Okay, पहले तो वो personally responsible कहलाएगा to compensate the loss of the company or shareholders if he, देखो किसके लिए, पहले तो अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी के लॉस के लिए भी डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ है तो शेयर होल्डर के लिए भी डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। कब? इफ़ ही विलफुली वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी अलॉटमेंट, ओके, और अलाउस अदर टू वायलेट देम, या उसने खुद वायलेट किए हैं प्रोविजंस या उसने
अलाउ करे। देखो कंपनी इज एन नॉट एन लिविंग थिंग, इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, वो खुद से डिसीजन नहीं लेती, तो उसके डिसीजन लेता कौन है, डायरेक्टर्स लेते हैं। तो अगर पता चला कि डायरेक्टर ने विलफुली ये प्रोविजंस वायोलेट की है या किसी से करवाए हैं, या राइट, या उसने ऑथेंटिकेट किया, हाँ तू कर ऐसे, ठीक है, अपने नाम पे नहीं पर किसी और से उसने करवाए, तो इस केस में भी डायरेक्टर को पर्सनली वो जो भी लॉसेस हुए होंगे वो उसको कंपेंसेट करने पड़ेंगे। कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी को वो फुलफिल करके देगा पर्सनल प्रॉपर्टी में से, और अगर शेयर होल्डर्स को हुआ है तो भी वो पर्सनल अपने कमाई में से वो कंपेंसेट करके देगा, राइट। The process of recovery of such loss must be initiated within 2 years of allotment of the शेयर्स। ये सब चीज़ें उसको 2 साल में मैक्सिमम वो कर देनी पड़ेगी। अभी देखो आपको ऐसा लगेगा कि अगर शेयर होल्डर्स जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 2 महीने में करना है, पर इसको कंपेंसेट करना है तो उसको 2 years दे रहे हैं, राइट। वाई? बिकॉज द अमाउंट वुड बी ह्यूज, नो, बिकॉज शेयर होल्डर्स का अमाउंट इतना बड़ा नहीं होगा, पर ये पूरे ज़्यादा लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी हाई, सो दैट्स वाई ही इज़ बीइंग गिवन 2 years to complete all such procedure. Alright, so these are the effects of irregular share allotment. Now these irregular share allotment and illegal share allotment काफ़ी resembling से लगते हैं. Let's see what they are. Now illegal share allotment, क्या है illegal share allotment? So allotment of share is considered illegal under the following circumstances. अगर following circumstances हैं तो हम लोग उसको consider करेंगे illegal. Share allotment is a contract between shareholders and company. ओके, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है? शेयर होल्डर एंड कंपनी। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि शेयर allotment is a contract between shareholders and company, directors and company, shareholders and directors, वैसे करके confusing मोड में पूछ सकते हैं, तो you have to write shareholder and company. Such contracts can be called valid contracts only when all essential elements which are required for a valid contract are present. ओके, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसके एसेंशियल्स होते हैं, राइट, उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होती है, तो वो सारी अगर फुलफिल नहीं है तो उसको बोलेंगे इलीगल शेयर अलॉटमेंट. एनी अलॉटमेंट मेड इन एब्सेंस ऑफ सच एलिमेंट्स, ओके, इज कंसिडर्ड एज इलीगल शेयर अलॉटमेंट. ओके, सो कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसके दिए हैं जो हम आज नहीं करेंगे. वी विल कंसिडर दीज एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो शेयर इलीगल कब कहलाता है? ये जो होता है ना, तो ये इसमें लॉफुल चीज़ें आ जाती है, जो उसका एक्ट है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे होता है, तो वो एक्ट जब वायोलेट होता है तो वो इलीगल कहलाता है. और जब प्रोविजंस, राइट, उसके कुछ प्रोविजंस हमने फॉलो नहीं करे हैं, ओके, तो हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं गए, पर हमने उसको फॉलो नहीं किया है, वी हैव फॉरगॉटन टू डू इट, ओके, तो उसको बोलते हैं इरेग्युलर. यू विल गेट टू नो इट मोर इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम लोग इलीगल शेयर्स अलॉटमेंट भी करेंगे, और उसके बाद यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. Alright, so up till this today we are keeping everyone. Make sure that you revise it, and at last page you are being given some abbreviations, कुछ उसके words हैं, word meanings हैं, which is very important to be learnt. So make sure that you revise it all well. So today we did the legal restrictions and provisions of share allotment. तो ये all 14 legal restrictions should be done nicely by you. Okay, and make sure that you learn it also from now itself, and if possible start making the points, okay, and put underline so that you can revise when you do the revision, it becomes easier for you to revise. Then irregular share allotment, that also 8 points, वो भी तुमको अंडरलाइन कर दो. एंड यू विल सी कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस या प्रोविजंस थे उसके ही बेस के ऊपर ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे, तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के. सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग.
So up till this we are keeping everyone. Thank you for watching. Have a nice day ahead.